ایسا عمل جو تیر کی طرح اپنے نشانے پر جا کر لگتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ اس لفظ کو پڑھ لیتے ہیں، اس لفظ کی اہمیت کو سمجھ لیں، تو ساری زندگی آپ اس لفظ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھیں گے اور ہمیشہ اس لفظ کو پڑھتے رہیں گے، اپنی من کی مرادیں پوری کرتے رہیں گے۔ اور یہ لفظ کوئی عام لفظ نہیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جو شخص بھی اس لفظ کو اپنی زندگی میں لائے گا، اس کو پڑھنے کا معمول بنائے گا، ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اگر آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی یہ لفظ سکھائیں گے تو وہ بھی سیکھ جائے گا۔ آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل ہیں، آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، رکاوٹوں میں گھرے ہوئے ہیں، بے جا مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل ہیں، آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، رکاوٹوں میں گھرے ہوئے ہیں، بے جا مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، دشمن آپ پر غالب ہے، کوئی بھی کاروبار نہیں چل رہا، جو کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، نوکری ملتی ہے تو چلی جاتی ہے، اور نوکری مل ہی جاتی ہے تو تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ گزارا ہی نہیں ہوتا۔ کئی سال گزر چکے ہیں، آپ کی زندگی میں سکون کا دن نہیں آیا۔ مجھے ایک صاحب نے کمنٹ باکس میں بتایا کہ 2017 سے میں بے روزگار ہوں، میرے پاس کوئی نوکری نہیں اور حالات بہت تنگ ہیں، اور مجھ پر ایک بے جا مقدمہ بھی ہے۔ ان سب لوگوں کو بھی جو بے جا مقدموں میں پھنس چکے ہیں، جنہیں جیل ہو چکی ہے اور رہائی نہیں ہو رہی، یا پھر بے روزگار ہیں، کئی سال ہو چکے ہیں، روزگار ہی نہیں مل رہا، تو اگر آپ ایک لفظ کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، جو آپ اس لفظ سے اللہ سے جو چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کاروبار کروں، کیا اس سے فائدہ ہوگا، یا پھر دوسرا کاروبار کروں، کیا اس سے فائدہ ہوگا، یہی نہیں پتہ چل رہا کہ نقصان ہوگا یا فائدہ، اور آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ میرا سارا پیسہ ڈوب نہ جائے، اگر اس کاروبار کو کرنے سے مجھے نقصان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اب میں کیا کروں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اگر آپ اپنے کیریئر کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں، یا پھر زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ سے فیصلہ غلط نہ ہو جائے، تو بس آج ہم آپ کو ایک عمل بتانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک خاص لفظ ہے جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ نے اس کا وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ لفظ ایک وظیفہ بھی ہے اور استخارہ بھی، یعنی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اس لفظ کے ذریعے آپ اس کا استخارہ بھی کر سکتے ہیں۔ دشمن آپ پر غالب ہے، کوئی بھی کاروبار نہیں چل رہا، جو کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، نوکری ملتی ہے تو چلی جاتی ہے، اور نوکری مل ہی جاتی ہے تو تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ گزارا ہی نہیں ہوتا۔ کئی سال گزر چکے ہیں، آپ کی زندگی میں سکون کا دن نہیں آیا۔ مجھے ایک صاحب نے کمنٹ باکس میں بتایا کہ 2017 سے میں بے روزگار ہوں، میرے پاس کوئی نوکری نہیں اور حالات بہت تنگ ہیں، اور مجھ پر ایک بے جا مقدمہ بھی ہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا عمل آپ کو بتایا جائے، ان سب لوگوں کو بھی جو بے جا مقدموں میں پھنس چکے ہیں، جنہیں جیل ہو چکی ہے اور رہائی نہیں ہو رہی، یا پھر بے روزگار ہیں، کئی سال ہو چکے ہیں، روزگار ہی نہیں مل رہا، تو اگر آپ ایک لفظ کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، جو آپ اس لفظ سے اللہ سے جو چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کاروبار کروں، کیا اس سے فائدہ ہوگا، یا پھر دوسرا کاروبار کروں، کیا اس سے فائدہ ہوگا، یہی نہیں پتہ چل رہا کہ نقصان ہوگا یا فائدہ، اور آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ میرا سارا پیسہ ڈوب نہ جائے، اگر اس کاروبار کو کرنے سے مجھے نقصان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اب میں کیا کروں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اگر آپ اپنے کیریئر کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں، یا پھر زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ سے فیصلہ غلط نہ ہو جائے، تو بس آج ہم آپ کو ایک عمل بتانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک خاص لفظ ہے جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ نے اس کا وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ لفظ ایک وظیفہ بھی ہے اور استخارہ بھی،
यानी आप शादी करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, इस लफ्ज के जरिए आप इसका इस्तिखारा भी कर सकते हैं और वजीफा भी पढ़ सकते हैं। आपकी जिंदगी में बहुत से मसाइल हैं, आप हर वक्त परेशान रहते हैं, रुकावटों में घिरे हुए हैं, बेजा मुकदमात में फंसे हुए हैं, दुश्मन आप पर गालिब है, कोई भी कारोबार नहीं चल रहा, जो कारोबार शुरू करते हैं इसमें नुकसान हो जाता है, नौकरी मिलती है तो चली जाती है और नौकरी मिल ही जाती है तो तनख्वाह इतनी कम होती है कि गुजारा ही नहीं होता। कई साल गुजर चुके हैं, आपकी जिंदगी में सुकून का दिन नहीं आया। मुझे एक साहब ने कमेंट बॉक्स में बताया कि 2017 से मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं और हालात बहुत तंग हैं और मुझ पर एक बेजा मुकदमा भी है। इन सब लोगों को भी जो बेजा मुकदमों में फंस चुके हैं, जिन्हें जेल हो चुकी है और रिहाई नहीं हो रही, या फिर बेरोजगार हैं, कई साल हो चुके हैं, रोजगार ही नहीं मिल रहा, तो अगर आप एक लफ्ज को अपने सीने से लगा लेते हैं, ये एक छोटा सा लफ्ज है जो आप इस लफ्ज से अल्लाह से जो चाहें आप मांग सकते हैं, अल्लाह आपको ज़रूर देगा। आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई फैसला करना चाहते हैं, किसी की शादी करना चाहते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कारोबार करूं, क्या इससे फ़ायदा होगा, या फिर दूसरा कारोबार करूं, क्या उससे फ़ायदा होगा, यही नहीं पता चल रहा कि नुकसान होगा या फ़ायदा, और आप इस वजह से परेशान हैं कि मेरा सारा पैसा डूब ना जाए, अगर इस कारोबार को करने से मुझे नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा, अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप अपने करियर के बारे में कोई फैसला लेना चाहते हैं या फिर ज़िंदगी का कोई भी मसला है, इस बारे में फैसला करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लगता है कि कहीं आपसे फैसला गलत ना हो जाए, तो बस आज हम आपको एक अमल बताने जा रहे हैं। ये एक ख़ास लफ्ज़ है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आपने इसका वजीफ़ा कर लेना है। ये लफ्ज़ एक वजीफ़ा भी है और इस्तिखारा भी, यानी आप शादी करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, इस लफ्ज़ के ज़रिए आप इसका इस्तिखारा भी कर सकते हैं। दुश्मन आप पर गालिब है, कोई भी कारोबार नहीं चल रहा, जो कारोबार शुरू करते हैं इसमें नुकसान हो जाता है, नौकरी मिलती है तो चली जाती है और नौकरी मिल ही जाती है तो तनख्वाह इतनी कम होती है कि गुजारा ही नहीं होता। कई साल गुजर चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून का दिन नहीं आया। मुझे एक साहब ने कमेंट बॉक्स में बताया कि 2017 से मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं और हालात बहुत तंग हैं और मुझ पर एक बेजा मुकदमा भी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा अमल आपको बताया जाए इन सब लोगों को भी जो बेजा मुकदमों में फंस चुके हैं, जिन्हें जेल हो चुकी है, नौकरी मिलती है तो चली जाती है और नौकरी मिल ही जाती है तो तनख्वाह इतनी कम होती है कि गुजारा ही नहीं होता। कई साल गुजर चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून का दिन नहीं आया। मुझे एक साहब ने कमेंट बॉक्स में बताया कि 2017 से मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं और हालात बहुत तंग हैं और मुझ पर एक बेजा मुकदमा भी है। इन सब लोगों को भी जो बेजा मुकदमों में फंस चुके हैं, जिन्हें जेल हो चुकी है और रिहाई नहीं हो रही, या फिर बेरोजगार हैं, कई साल हो चुके हैं, रोजगार ही नहीं मिल रहा, तो अगर आप एक लफ्ज़ को अपने सीने से लगा लेते हैं, ये एक छोटा सा लफ्ज़ है जो आप इस लफ्ज़ से अल्लाह से जो चाहें आप मांग सकते हैं, अल्लाह आपको ज़रूर देगा। आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई फैसला करना चाहते हैं, किसी की शादी करना चाहते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कारोबार करूं, क्या इससे फ़ायदा होगा, या फिर दूसरा कारोबार करूं, क्या उससे फ़ायदा होगा, यही नहीं पता चल रहा कि नुकसान होगा या फ़ायदा, और आप इस वजह से परेशान हैं कि मेरा सारा पैसा डूब ना जाए, अगर इस कारोबार को करने से मुझे नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा, अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप अपने करियर के बारे में कोई फैसला लेना चाहते हैं या फिर ज़िंदगी का कोई भी मसला है, इस बारे में फैसला करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लगता है कि कहीं आपसे फैसला गलत ना हो जाए, तो बस आज हम आपको एक अमल बताने जा रहे हैं। ये एक ख़ास लफ्ज़ है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आपने इसका वजीफ़ा कर लेना है। ये लफ्ज़ एक वजीफ़ा भी है और इस्तिखारा भी, यानी आप शादी करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, इस लफ्ज़ के ज़रिए आप इसका इस्तिखारा भी कर सकते हैं। दुश्मन आप पर गालिब है, कोई भी कारोबार नहीं चल रहा, जो कारोबार शुरू करते हैं इसमें नुकसान हो जाता है, नौकरी मिलती है तो चली जाती है और नौकरी मिल ही जाती है तो तनख्वाह इतनी कम होती है कि गुजारा ही नहीं होता। कई साल गुजर चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून का दिन नहीं आया। मुझे एक साहब ने कमेंट बॉक्स में बताया कि 2017 से मैं
बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं और हालात बहुत तंग हैं और मुझ पर एक बेजा मुकदमा भी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा अमल आपको बताया जाए इन सब लोगों को भी जो बेजा मुकदमों में फंस चुके हैं, जिन्हें जेल हो चुकी है और रिहाई नहीं हो रही, या फिर बेरोजगार हैं, कई साल हो चुके हैं, रोजगार ही नहीं मिल रहा। तो अगर आप एक लफ्ज़ को अपने सीने से लगा लेते हैं, ये एक छोटा सा लफ्ज़ है जो आप इस लफ्ज़ से अल्लाह से जो चाहें आप मांग सकते हैं, अल्लाह आपको ज़रूर देगा। आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई फैसला करना चाहते हैं, किसी की शादी करना चाहते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कारोबार करूं, क्या इससे फ़ायदा होगा, या फिर दूसरा कारोबार करूं, क्या उससे फ़ायदा होगा, यही नहीं पता चल रहा कि नुकसान होगा या फ़ायदा, और आप इस वजह से परेशान हैं कि मेरा सारा पैसा डूब ना जाए, अगर इस कारोबार को करने से मुझे नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा, अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप अपने करियर के बारे में कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं या फिर ज़िंदगी का कोई भी मसला है, इस बारे में फ़ैसला करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लगता है कि कहीं आपसे फ़ैसला गलत ना हो जाए, तो बस आज हम आपको एक अमल बताने जा रहे हैं। ये एक ख़ास लफ्ज़ है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने इसका वजीफ़ा कर लेना है। ये लफ्ज़ एक वजीफ़ा भी है और इस्तिखारा भी, यानी आप शादी करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, इस लफ्ज़ के ज़रिए आप इसका इस्तिखारा भी कर सकते हैं और वजीफ़ा भी पढ़ सकते हैं। और वो लफ्ज़ ये है ला खिलाबा, ला खिलाबा। जिसने भी ये वजीफ़ा किया, इसने बताया कि इस लफ्ज़ की बरकत से मेरा हर काम हो जाता है। अगर आप ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आप रास्ते में इस लफ्ज़ का विर्द करते जाएं, अगर वो लाख रुपए की भी चीज़ हो तो जितना आप सोचेंगे आपको इतने की ही मिलेगी। तो इस वजीफ़े का विर्द रास्ते में ही जारी रखें, इससे होगा ये कि आपको हर चीज़ मुनासिब कीमत पर मिल जाएगी। तो नाज़रीन, हमारे कहने पर आपने इस अमल को, ये छोटा सा अमल ला खिलाबा, किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। आप जो भी मकसद हो, आपने इस अमल को एक बार ज़रूर आज़मा लेना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर आकर बताना आपने किस मकसद के लिए इस अमल को किया और आपको फ़ायदा हुआ या नहीं, और आपको ये लफ्ज़ पढ़ने के बाद ज़िंदगी में क्या मिला। तो नाज़रीन, अमल नोट फरमा लें। अमल ये है कि आपने 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, अगर आप इस्तिखारा करना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, तो आपने कम से कम 11 दिन तक हर नमाज के बाद ला खिलाबा पढ़ना है और अपने मकसद को अपने ज़हन में रखना है, चाहे वो शादी का इस्तिखारा है, कारोबार का है, या फिर किसी भी मकसद का है। तो आपने अपने मकसद को अपने ज़हन में रख कर ला खिलाबा हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है, यानी 100 बार पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये काम आपके लिए बेहतर है या नहीं, रिश्ता आपके लिए बेहतर है या नहीं। इसके लिए आपको कोई ख्वाब देखने की भी ज़रूरत नहीं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, हर चीज़ खुलकर आपके सामने आ जाएगी। यानी आपने जिस मकसद के लिए भी इस्तिखारा किया है, वो काम, रिश्ता, कारोबार, नौकरी आपके लिए बेहतर होगी या नहीं, आपको पता चल जाएगा। हर चीज़ खुलकर आपके सामने आ जाएगी, और अगर आपके लिए बेहतर नहीं होगी तो भी आपको पता चल जाएगा, और अगर आपके लिए बेहतर होगी तो भी आपको पता चल जाएगा। हमने आपको इस्तिखारा और वजीफ़े का अमल बताया, और आप इस वजीफ़े को ला खिलाबा अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, यानी रोज़ाना एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम ला खिलाबा की करनी है। तो इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद पूरी होगी, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। अगर आप करोड़पति भी बनना चाहते हैं, अरबपति भी बनना चाहते हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप इस लफ्ज़ की बरकत से दीन और दुनिया की हर नेमत हासिल कर लेंगे। अगर आप सच्चे दिल से, कामल यकीन से और इस वजीफ़े की बरकत से कोई भी चीज़ मांगेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। दुनिया में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाए, मुश्किलात के पहाड़ ही क्यों ना टूट पड़े, इन सब मुसीबतों, इन सब मुश्किलात से निकलने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसे आप हासिल करना चाहते हैं और कई साल हो चुके हैं और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो आप इस लफ्ज़ को अपना लें, अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। रोज़ाना की एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को करें, इंशाअल्लाह दुनिया की हर चीज़ आपको मिल जाएगी। जो आप हासिल नहीं कर सके वो भी आपको मिल जाएगा। इस वजीफ़े के अमल से आपको फ़ायदा होगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हैं, आप हर वक्त परेशान रहते हैं, रुकावटों में घिरे हुए हैं, बेजा मुकदमात में फंसे हुए हैं, दुश्मन आप पर गालिब है, कोई भी कारोबार नहीं चल रहा, जो कारोबार शुरू करते हैं इसमें नुकसान हो जाता है,
नौकरी मिलती है तो चली जाती है और नौकरी मिल ही जाती है तो तनख्वाह इतनी कम होती है कि गुजारा ही नहीं होता। कई साल गुजर चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून का दिन नहीं आया। मुझे एक साहब ने कमेंट बॉक्स में बताया कि 2017 से मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं और हालात बहुत तंग हैं और मुझ पर एक बेजा मुकदमा भी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा अमल आपको बताया जाए, इन सब लोगों को भी जो बेजा मुकदमों में फंस चुके हैं, जिन्हें जेल हो चुकी है और रिहाई नहीं हो रही, या फिर बेरोजगार हैं, कई साल हो चुके हैं, रोजगार ही नहीं मिल रहा। तो अगर आप एक लफ्ज़ को अपने सीने से लगा लेते हैं, ये एक छोटा सा लफ्ज़ है जो आप इस लफ्ज़ से अल्लाह से जो चाहें आप मांग सकते हैं, अल्लाह आपको ज़रूर देगा। आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई फैसला करना चाहते हैं, किसी की शादी करना चाहते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कारोबार करूं, क्या इससे फ़ायदा होगा, या फिर दूसरा कारोबार करूं, क्या उससे फ़ायदा होगा, यही नहीं पता चल रहा कि नुकसान होगा या फ़ायदा, और आप इस वजह से परेशान हैं कि मेरा सारा पैसा डूब ना जाए, अगर इस कारोबार को करने से मुझे नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा, अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप अपने करियर के बारे में कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं या फिर ज़िंदगी का कोई भी मसला है, इस बारे में फ़ैसला करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लगता है कि कहीं आपसे फ़ैसला गलत ना हो जाए, तो बस आज हम आपको एक अमल बताने जा रहे हैं। ये एक ख़ास लफ्ज़ है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आपने इसका वजीफ़ा कर लेना है। ये लफ्ज़ एक वजीफ़ा भी है और इस्तिखारा भी, यानी आप शादी करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, इस लफ्ज़ के ज़रिए आप इसका इस्तिखारा भी कर सकते हैं और वजीफ़ा भी पढ़ सकते हैं। और वो लफ्ज़ ये है ला खिलाबा, ला खिलाबा। जिसने भी ये वजीफ़ा किया, इसने बताया कि इस लफ्ज़ की बरकत से मेरा हर काम हो जाता है। अगर आप ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आप रास्ते में इस लफ्ज़ का विर्द करते जाएं, अगर वो लाख रुपए की भी चीज़ हो तो जितना आप सोचेंगे आपको इतने की ही मिलेगी। तो इस वजीफ़े का विर्द रास्ते में ही जारी रखें, इससे होगा ये कि आपको हर चीज़ मुनासिब कीमत पर मिल जाएगी। तो नाज़रीन, हमारे कहने पर आपने इस अमल को, ये छोटा सा अमल ला खिलाबा, किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। आप जो भी मकसद हो, आपने इस अमल को एक बार ज़रूर आज़मा लेना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर आकर बताना आपने किस मकसद के लिए इस अमल को किया और आपको फ़ायदा हुआ या नहीं, और आपको ये लफ्ज़ पढ़ने के बाद ज़िंदगी में क्या मिला। तो नाज़रीन, अमल नोट फरमा लें। अमल ये है कि आपने 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, अगर आप इस्तिखारा करना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, तो आपने कम से कम 11 दिन तक हर नमाज के बाद ला खिलाबा पढ़ना है और अपने मकसद को अपने ज़हन में रखना है, चाहे वो शादी का इस्तिखारा है, कारोबार का है, या फिर किसी भी मकसद का है। तो आपने अपने मकसद को अपने ज़हन में रख कर ला खिलाबा हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है, यानी 100 बार पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये काम आपके लिए बेहतर है या नहीं, रिश्ता आपके लिए बेहतर है या नहीं। इसके लिए आपको कोई ख्वाब देखने की भी ज़रूरत नहीं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, हर चीज़ खुलकर आपके सामने आ जाएगी। यानी आपने जिस मकसद के लिए भी इस्तिखारा किया है, वो काम, रिश्ता, कारोबार, नौकरी आपके लिए बेहतर होगी या नहीं, आपको पता चल जाएगा। हर चीज़ खुलकर आपके सामने आ जाएगी, और अगर आपके लिए बेहतर नहीं होगी तो भी आपको पता चल जाएगा, और अगर आपके लिए बेहतर होगी तो भी आपको पता चल जाएगा। हमने आपको इस्तिखारा और वजीफ़े का अमल बताया, और आप इस वजीफ़े को ला खिलाबा अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, यानी रोज़ाना एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम ला खिलाबा की करनी है। तो इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद पूरी होगी, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। अगर आप करोड़पति भी बनना चाहते हैं, अरबपति भी बनना चाहते हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप इस लफ्ज़ की बरकत से दीन और दुनिया की हर नेमत हासिल कर लेंगे। अगर आप सच्चे दिल से, कामल यकीन से और इस वजीफ़े की बरकत से कोई भी चीज़ मांगेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। दुनिया में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाए, मुश्किलात के पहाड़ ही क्यों ना टूट पड़े, इन सब मुसीबतों, इन सब मुश्किलात से निकलने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसे आप हासिल करना चाहते हैं और कई साल हो चुके हैं और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो आप इस लफ्ज़ को अपना लें, अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। रोज़ाना की एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को करें, इंशाअल्लाह दुनिया की हर चीज़ आपको मिल जाएगी। जो आप हासिल नहीं कर सके वो भी आपको मिल जाएगा। इस वजीफ़े के अमल से आपको फ़ायदा होगा।
جو بھی مسلمان جس بھی تکلیف میں ہو، جس بھی پریشانی میں ہو، جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے اور اللہ پاک اپنی ذات کے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔